So what is entrepreneurship? Right? You all must be knowing already entrepreneurship hai kya. So one more thing, Preeti, I would like to ask you, like, should I be going in Hindi or English or a mix? Ma'am, a mix will be okay. Okay, cool, understandable. Yes, Fine. ma'am. So entrepreneurship, everybody knows entrepreneurship is what? When you start a new venture with some innovative sort of thing in your idea or your business or your prototype. So it can be anything that has a potential for a scalable business with some sort of innovation. So innovation could be a technology, it could be a research product, it could be, I mean, innovation necessarily doesn't mean it has to be a product innovation. It can be a process innovation, it can be a market linkage innovation, it can be a supply chain innovation. If all this sounds really new to you, so I'll take you through. I'll make you understand what am I saying, what am I talking about. So who can be innovator or entrepreneur? There is no like set guidelines, or there's no anything is no mandatory that you have to have some kind of education to be an entrepreneur. A person who has never been to school can be an entrepreneur. A person who has already done his PhD or maybe postdoctorate can also be an entrepreneur. So if somebody asks me what is the age limit for being an entrepreneur, that is also like not a valid question, I would say, because the age is also not a factor for entrepreneur. Some students you must have seen, or even around you, and especially in our country, that some guys like the IT guys or the students who are just doing, maybe they're 12th or maybe just in the first year of their engineering, they have started a startup. And some people who have retired from the government service or the private sector, they also enjoy starting a startup. So that means age is also not a factor if you want to start on entrepreneurship. Now let's talk about the scene of agribusiness. So when we talk about agribusiness, it does not just include agriculture, because you all are from the ICR ecosystem. So you must be already knowing that agriculture, it encompasses so many sectors, and now it's not even limited to agriculture and allied sectors. We are also, I would say, expanding our roots towards the sectors. I mean, it has become more sector agnostic. So the sectors which were never a part of agribusiness, they are also now a part of agribusiness. So that's how this AI, this ML, this IoT, now we also hear these things, fintech. So that means like agriculture is, it has, I mean, even in 2023, we as a country being an agrarian economy, we still have majority of our people or our sectors working or directly or indirectly towards agriculture. And now, because agriculture is also growing, now, I mean, it's the transformation. That's why this Agriculture 5.0 workshop is also being organized to make you understand how the things are changing. So that's how I can say this will grow more. So now for the starters to become more entrepreneurial, some assistance from the enablers, we call them accelerators or incubators, that is needed. So that's where the agribusiness incubation comes into focus. So there are a lot of organizations which are working with various sectors in agriculture, in agri and allied sector space, and which are enabling you to start an agribusiness enterprise. So if you talk about what are the opportunities, so I would say there are no opportunities that cannot be counted in agribusiness opportunity. The shirts that you're wearing, the food that you're eating in your plate, whatever you see around, the bottle, the water bottle, the milk, the food processing, the veterinary, anything. So everything you see around can be counted as an agribusiness opportunity. That means you have to see where do you see your forte as, and where do you see there is a lack of this and I need to invent this or I need to introduce this thing in the market. So opportunities for entrepreneurs in agriculture sector, it can start from the cultivation itself, and also post-harvest, infrastructure, R&D, services, anything. I mean, I would say anything. If you think of an idea and you think like, okay, I want to start an enterprise, or maybe like a startup, or maybe just start a consultancy. So it doesn't even have to have a goods or a services. Like if you even go for anything. So agriculture as a sector is facing, I mean, because we have already seen like it's facing a lot of issues, which are the pressing issues. So that includes food security, maybe lack of mechanization, maybe, the burning issues we see. So inducing and implementing these innovative ideas through agribusiness is always been in demand. So it is the need of the hour, I would say. The entrepreneurial ecosystem, how does it work? So there are entrepreneurs, the people jin log ko apna business shuru karna hai, and then there are investors, the people who have money. See, the people who have ideas are entrepreneurs. The people who have money, they are investors. Entrepreneurs also invest. वो खुद अपना पैसा भी अपने business में लगाते हैं. That becomes bootstrap, or you can say equity. But when you have to raise some capital,
it can be a grant, it can be a loan, you can say. So there are people, there are groups which are investors which invest money in you. So I think most of you have also seen Shark Tank India, जिसमें आपको थोड़ा investor का point of view समझ में आएगा, like how do the investors work. And then we have mentors with us. So mentors can be business mentors or the technical mentors. So technical mentors from the whole ICR ecosystem, like SAU say, ICR Institute say. And then we have also business mentors. So these are the industrial experts, or maybe finance expert, maybe, you know, any sort of communication expert. So we have the pool of mentors with us as well, which work for the entrepreneurial ecosystem. And then we have the SAUs, and then we have the other government agencies, because if you have to start a startup, maybe for an example, let's say a farm mechanization startup. So you have to have your product validated by various government agencies. So if we talk about farm mechanization, so there are like 4 government agencies all over India, which are the Apex tech validations agencies. So similarly, in other sectors, like if you have to go for food certifications, so then the FSSAI is there, then HACCP is there. So yes, these are government agencies which provide you technical validation for your product. And then lastly, we have the support organizations. So where the incubators or the accelerators come into scene. So all of these, they work together to form an entrepreneurial ecosystem. And that's how we are creating an environment that not only fosters innovation, it also promotes creativity and also brings an entrepreneurial, you know, zeal in the society. So that, क्योंकि see, it's a very evident thing कि हमारा, I mean, considering the population of our country, कि हर किसी को तो सरकारी नौकरी नहीं लगने वाली है और हर किसी को इंटरेस्ट भी नहीं होता. So people have ideas even with the government jobs. ऐसा जरूरी नहीं है कि सरकारी नौकरी के साथ नहीं कर सकते. Even with the government jobs, you can start a startup. ठीक है? So this is the entrepreneurial ecosystem that I already mentioned. कि policy रहेगा, finance रहेगा, culture रहेगा, and where the support organizations are there. Then you have human capital, that means human resources, people, and then markets. So in सब से आपका culture and mindset develop होता है. So India, because I think I'll take you through the numbers as well, but it is one of the most promising countries for starting any startup. आज से कुछ अगर हम बात करते हैं more than a decade ago, or maybe I would say at least 15-16 साल पहले, तो IT hub के नाम पे बैंगलोर का it was a boom. तो सभी IT का startups डाल रहे थे. But things are really changing now. You can actually see agri or agri-tech ka startups in the, I would say, the bigger scene. So that means what? कि अभी बहुत सारे unicorns जो थे वो निकल के आ रहे हैं और उसमें agri-tech का numbers भी काफी, like they're improving. So that also means that the culture and mindset towards agribusiness is also changing. So there is like huge talent of people. हम लोग even if we are like ऐसा तो है कि because some people are doing their masters in agriculture, their graduation in agriculture, and then PhD in agriculture. तो जरूरी भी नहीं है कि like everybody is doing a study in agriculture. अगर उन लोग के पास में, if they have a zeal and if they are not even, you know, literate enough, they can even start an agribusiness and enterprise. They just have to have a person like a technical आदमी वो अपने साथ रख सकते हैं. Maybe, you know, like a co-director or co-founder, right? And then you need capital, पैसा आपको चाहिए. Then you need infrastructure, support services, and regulations and policy that I already mentioned. ठीक है? So I'll take you essentials for the process. So कोई भी एग्रीकल्चर एंटरप्राइज शुरू करने के लिए, कोई भी एग्री बिजनेस एंटरप्राइज शुरू करने के लिए हमें सबसे पहले मार्केट रिसर्च लगती है. दैट मींस वी रिक्वायर द मार्केट रिसर्च. सो दैट मींस वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हम कौन से मार्केट में आने वाले हैं. फॉर एन एग्जांपल, अगर आप फूड प्रोसेसिंग में आने हैं, फॉर एन एग्जांपल आप लिक्विड बायोफर्टिलाइजर्स में आने वाले हैं, सो उसका मार्केट रिसर्च क्या है? आपको उसका टैम एंड टॉम, लाइक आपको टोटल एड्रेसेबल मार्केट समझना पड़ेगा और आप उस मार्केट में से किस मार्केट को एड्रेस करने वाले हैं. दैट मींस आपका निश मार्केट क्या रहेगा, आपको वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. देन यू अकॉर्डिंगली यू हैव टू क्रिएट अ बिजनेस प्लान. कि अच्छा, फॉर एन एग्जांपल किसी ने बोला मेरे को लिक्विड बायोफर्टिलाइजर्स बनाने और मैं, हो सकता है मैं राइजोटिका, लाइक लेट्स कॉल, हमारी देसी भाषा में राइजो का टीका, ठीक है, तो राइजोटिका पे मैं काम करता हूँ. और उसने सोचा कि मैं फोकस रखता हूँ मे बी फॉर इंस्टेंस से झारखंड एंड बिहार. अब उसको आइडेंटिफाई करना है कि वहां पे मार्केट ऑलरेडी कैसा है. ठीक है, हाउ आर द पीपल डूइंग, और अगर मार्केट में ऑलरेडी प्लेयर्स हैं, हाउ आर दे डूइंग. एंड देन ही नीड्स टू असेस द, आई मीन द स्टार्टअप विल नीड टू असेस कि अगर मैं अपना प्रोडक्ट मार्केट में उतारता तो मेरा यूएसपी क्या होगा, लाइक व्हाट इज माय यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन व्हिच मेक्स मी डिफरेंट फ्रॉम द अदर प्लेयर्स इन द मार्केट, कि मैं उनसे डिफरेंट कैसे हूँ. एंड देन यू नीड टू अंडरस्टैंड वहां पे मार्केट बाइंग कैपेसिटी कितना है, लोग कितना खरीद पा रहे हैं. ठीक है, एंड देन यू नीड टू सी द अडेप्टेशन, एवरीथिंग. सो रूल्स रेगुलेशंस, अगर आपको कोई लाइसेंस लेना है तो वो आपको हर एक चीज देखना पड़ेगा. सो दैट इज द क्रिएशन ऑफ द बिजनेस प्लान. उसके बाद में जब ये बिजनेस प्लान आपने एक ऐसे चॉक आउट कर लिया एक पेपर पे, यू नो, मोर लाइक अ ब्लूप्रिंट आई वुड से,
देन यू लुक फॉर फंडिंग। अच्छा, अब अभी हमने पूरा एस्टिमेट्स निकाल के लगा लिया कि मेरे को मिनिमम 20 लाख रुपए चाहिए। अभी मैं देखता हूँ कि मेरे पास अकाउंट में 4 लाख रुपए हैं या 5 लाख रुपए हैं या 1 लाख रुपए हैं, फॉर इंस्टेंस कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, अपना फ्रेंड्स फैमिली से कितना अपने लेवल पे जुड़ा सकता हूँ, विच इज कॉल्ड बूट स्ट्रैपिंग, कि आपने अपने पैसे से कितना पैसा जोड़ लिया। अभी जो डिफरेंस बचा है तो उसका देन यू लुक फॉर द फंडिंग अपॉर्चुनिटीज। आपको ग्रांट चाहिए, आपको वेदर यू वांट टू लिक्विडेट योर इक्विटी या आपको बैंक से लोन लेना है, दैट यू हैव टू सी, और उसके अकॉर्डिंगली देन यू प्लान अकॉर्डिंगली द थिंग्स। फिर उसको लीगल और रेगुलेटरी एनवायरनमेंट में सबको पुट हम करते हैं, एंड देन यू रजिस्टर योर बिजनेस। मे बी इट विल बी लाइक LLP या सोसाइटी, या आपको जो भी करना है, ठीक है। एंड देन यू एक्वायर द फाइनल अरेंजमेंट्स, एंड दैट्स हाउ एनी बिजनेस, आई मीन आई वोंट से कि एग्री बिजनेस ओनली, कोई भी बिजनेस ऐसे ही, इसका एक सिंपल प्रोसेस यही होता है, ठीक है। तो वेज द एग्रीकल्चर अफेक्ट योर लाइफ, लाइक आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि कॉस्मेटिक्स में भी आ चुका है एग्रीकल्चर, ठीक है, बिकॉज देयर आर सो मेनी प्रोडक्ट्स विच आर बीइंग सोल्ड ऑल ओवर इंडिया, जिसमें बोलते हैं कि ये केमिकल फ्री है, तो विच इज लाइक प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स आर देयर, सो कॉस्मेटिक्स में है, क्लोथिंग में ऑलरेडी है, ठीक है, फ्यूल है, बायोफ्यूल तक आ चुके हैं, फूड वी ऑलरेडी नो प्रोसेसिंग में है, हेल्थ इंडस्ट्री में, फार्मा में आ चुका है, एंड इकोनॉमी एज अ होल। सो प्री रिक्विजिट्स क्या होते हैं किसी भी एंटरप्रेन्योरशिप की कॉम्पिटेंसीज के लिए, लाइक हाउ आर यू कॉम्पिटेंट इन द मार्केट। तो आपके पास टेक्निकल कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए, आपके पास आपकी टीम में, अगर आपके फाउंडर या को फाउंडर में नहीं है तो एटलीस्ट टीम में टेक्निकल बंदा होना चाहिए, ठीक है। फिर नेटवर्किंग एंड रिलेशनशिप बिल्डिंग के लिए आपको यानी कि कम्युनिकेशन एंड मार्केटिंग की आपको एक टीम लगेगी। देन असिस्ट टू रिसोर्सेज, आपके पास सारे रिसोर्सेज जिसमें फंडिंग से लेके ह्यूमन रिसोर्सेज तक सब कुछ आ जाएगा। एंड रेगुलेटरी एंड पॉलिसी नॉलेज, आपको उसके लिए थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा। यू मे रिक्वायर, आई मीन समटाइम्स ऐसा होता है कि जरूरी नहीं आपको फुल टाइम CA हायर करना पड़े, आप एक छोटा मोटा एक असाइनमेंट के लिए एक CA को भी हायर कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस आर द प्री रिक्विजिट। अब कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप को देखने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी होती है, दीज आर द बेसिक थिंग्स। आई थिंक वी डू नॉट नीड टू नो दिस, क्योंकि ये सभी को पता है कि क्या क्या फीचर्स, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए एक एंटरप्रेन्योर अच्छा बनने के लिए। तो अपॉर्चुनिटी रिकॉग्नाइज करने का हमारे अंदर वो होना चाहिए, लाइक कैपेबिलिटी होना चाहिए, रिस्क को मैनेज करना है, फाइनेंस को मैनेज करना है, मार्केटिंग एंड सेल्स देखना है। सो दिस आर द बेसिक, आई वुड से लाइक द ब्रांचेस ऑफ एनी बिजनेस। ऑपरेशंस देखना पड़ेगा, इनोवेशन क्रिएटिविटी का आपका टीम रहेगा, नेटवर्किंग एंड अडेप्टेबिलिटी। और जरूरी नहीं है कि आपको आई थिंक आई कैन हियर सम साउंड, ओके, एनीवे। सो जरूरी नहीं आपको हर बार एक पूरी टीम ही बनानी है या हर एक डिपार्टमेंट के लिए आपको एक अलग बंदा रखना है। समटाइम्स यू जस्ट गो यश जी, आपका बार बार अनम्यूट हो रहा है शायद माइक, प्लीज टेक केयर ऑफ दैट। या सो आई वाज जस्ट सेइंग कि जरूरी नहीं आपको इतने लोगों को हर बार हायर करना या इतनी टीम्स आपको हर बार बनानी पड़ेंगी। यू कैन जस्ट गो इन द मार्केट एज अ वन मैन आर्मी एज वेल, एंड देन अंडरस्टैंड कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या रिक्वायरमेंट हो रहा है, बिकॉज एक टाइम जब हम बिजनेस शुरू करते हैं तो जरूरी नहीं है कि हमें ब्रेक इवन एकदम से अचीव होता है। इट टेक्स टाइम टू अर्न प्रॉफिट्स। समटाइम्स यू हैव टू इनकर द कॉस्ट फॉर एटलीस्ट 6 मंथ से, हमें वेरी करता है कौन से मार्केट या कौन से सेक्टर में या कौन से प्रोडक्ट में हो। तो 6 महीने से लेकर 2 साल तक के बीच में आपका ब्रेक इवन, विच मीन्स लाइक अर्निंग प्रॉफिट, वो आपका वेरी करता है। उसके बाद इफ यू आर स्टार्टिंग लाइक यू मेकिंग प्रॉफिट्स और समथिंग, देन यू कैन एक्सपैंड योर टीम एनी डे आफ्टर दैट। तो अब वापस आते हैं, अगर हम बात करते हैं इंडिया क्यों, वी आर द थर्ड इन द होल ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम, ठीक है। उसके बाद 2019 का डेटा है, उसके बाद वो तो ये बहुत बढ़ चुका है, तब भी उस टाइम पे भी $14.5 बिलियन से भी ज्यादा फंडिंग रेज कर चुके थे हम लोग, ठीक है। और हमारे यहाँ पे एक एवरेज एज अगर आप बात करोगे तो वो 28 ईयर्स थी, यंग एंड एस्पायरिंग माइंड्स की, ठीक है। तो एवरेज एज जो स्टार्टअप फाउंडर्स हैं उनका एवरेज इतना है, ठीक है। और 280 से भी ज्यादा इस अपने इंक्यूबेटर्स एंड एक्सेलरेटर्स ऑल ओवर इंडिया 2016 में रजिस्टर्ड थे, ठीक है। तो दैट इज ऑल्सो थर्ड लार्जेस्ट नंबर ऑफ इंक्यूबेटर्स वर्ल्ड वाइड, ठीक है। तो ये अगर आप देखेंगे नीचे नंबर्स तो आप ये देख पाएंगे यहाँ पे टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्रोडक्ट जिसने बनाए, यूएस से 47,000 आया, यूके से 4500 आया, इंडिया से 4200 आया, विच इज ऑल्सो आफ्टर अस कम्स इजराइल, विच इज ऑल्सो गुड फ्रेंड ऑफ आवर्स, और वहां का भी एंटरप्रेन्योर इकोसिस्टम इज वेरी गुड, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारा यहाँ पे जो रफ्तार प्रोग्राम होता है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की काफी बड़ी स्कीम है RKVY, एवरीबडी नोज अबाउट इट, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। उसके तहत एक स्कीम है रफ्तार प्रोग्राम। रफ्तार के अंडर आपके पास एग्री बिजनेस का एक पूरा का पूरा सेक्टर है, उसमें हम एग्री बिजनेस इंक्यूबेटर्स को सेटअप करते हैं टू हेल्प एंड सपोर्ट एग्री बिजनेस स्टार्टअप्स ऑल ओवर इंडिया थ्रू वेरियस SAUs और ICR इंस्टीट्यूट्स, राइट। अभी इजराइल का नंबर अगर मैं आपको बताऊं तो 2009 में
फ्रांस और जर्मनी को कंबाइन करके भी अगर जितना वेंचर कैपिटल था उससे ज्यादा इसराइल ने अट्रैक्ट किया था। इसराइल का नैस्डैक लिस्टेड कॉर्पोरेशंस पूरे यूरोप और एशिया से ज्यादा हैं, ठीक है। हर 1850, लेट्स कॉल इट लाइक नॉट गो फॉर द 1844, लेट्स से कि हर 1850 आदमी के ऊपर एक स्टार्टअप है उधर, ठीक है। पूरा पूरा यूरोप का जितना भी वेंचर कैपिटल का पैसा है उससे ज्यादा उनके पास पर पर्सन 30 टाइम्स ज्यादा है। And for every 100 male entrepreneurs, there are 64 women, which means it's a very promising, supporting, enabling women startup country. ठीक है। अभी वापस आते हैं, प्लेयर्स कौन कौन हो सकते हैं इकोसिस्टम में। आपकी फैमिली भी हो सकती है जो आपको सपोर्ट या अपब्रिंगिंग देगी इससे रिलेटेड। कभी कभी क्या होता है, क्योंकि थिंग्स आर ऑल्सो चेंजिंग, आफ्टर कोविड तो बहुत सारी चीजें चेंज हुई हैं। अर्लियर पीपल यूज टू थिंक लाइक कि नहीं मेरे को नहीं करना है, मेरे को ऐसा नहीं करना है, मेरे को वैसा नहीं करना है। नाउ पीपल वांट टू एक्सप्लोर एंड एक्सपेरिमेंट एंड सी where would the tables turn, कि हम लोग ऐसा करेंगे तो कैसा होगा। So now the people, I would say, have become more good of risk managers. So family का support is the most essential that you would require when you start an agri enterprise. Then friends are there, right? And your peer, like friends and peer को we can connect it. फिर community is there कि वहाँ पे positively लेते हैं उस चीज को, नहीं लेते हैं, ठीक है। then funding agencies are there, आपके यहाँ पे funding agencies कितनी है, कैसी है, उनके साथ फॉर्मल है या इनफॉर्मल है, कैसा है। एनजीओ ऑलरेडी हैं या नहीं मार्केट में, आपको मेंटरिंग लग रही है कि मतलब आपको रिक्वायरमेंट है तो वो उनको मिल रही है कि नहीं मिल रही है, ठीक है। स्टैट्यूटरी बॉडीज आर देयर एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड पॉलिसीज आर देयर। ये सारा का सारा सीन अगर मैं बोलूं कि कब से ज्यादा चेंजेस आए थे, इवन फॉर द द टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर्स, द टीबीआईज वी कॉल दैट, यानी कि आईटी का जो स्टार्टअप जब शुरू हुए थे तो 1991 के पैराडाइम शिफ्ट के बाद ही ज्यादा चीजें चेंज हुई थी, ठीक है। फिर इसमें इसके डिटेल में नहीं जाते हैं, लेट्स गो टू द एग्री बिजनेस थिंग ओनली। अब इनोवेशन क्या हो सकता है? इनोवेशन, लाइक आई ऑलरेडी टोल्ड यू, इट कैन बी अ प्रोडक्ट इनोवेशन, लाइक व्हाट यू डू, व्हाट हैव यू प्रिपेयर्ड। इट कैन बी अ प्रोसेस इनोवेशन, लाइक हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द अदर इनोवेशन। इट कैन बी अ बिजनेस मॉडल इनोवेशन, दैट इज द पैराडाइम इनोवेशन, कि इस चीज से हम पैसा कैसा बना सकते हैं, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल, आज से अगर मैं बात करूं 12-15 साल पहले की या 10 साल पहले की भी, क्या किसी ने सोचा था कि हम घर बैठ के अपना खाना ऑर्डर करेंगे और उस खाना ऑर्डर करने वाले को हम पैसा देंगे, और वो, या फिर फॉर एग्जाम्पल हमें घर बैठ के हमें ग्रोसरीज मंगानी है। I'm giving you example of Zomato, Swiggy और Blinkit for that matter, ठीक है। नहीं सोचा था, तो दैट इज अ बिजनेस मॉडल इनोवेशन। उसमें कुछ नयापन नहीं है, बट उसने नयापन क्या लिया कि इस चीज में पैसा कैसे बनाया जा सकता है, दे इंट्रोड्यूस दैट थिंग, ठीक है। एंड देन ऑल्सो वी हैव पोजीशन इनोवेशन, कि कैसा आपकी एक मार्केट में पोजीशन है उसका इनोवेशन का, यानी कि मार्केटिंग मिक्स या स्ट्रेटेजी को आप ऐसा इनोवेट कीजिए। सो पोजीशनिंग का मतलब होता है कि एक प्रोडक्ट का इमेज आपकी आईज में कैसा है, एक कंज्यूमर की आईज में कैसा है। फॉर एग्जाम्पल, though the Android phones have, now they have, I think, multi-folds much benefits than the, I don't want to offend the iPhone users, but उनके बजाय, उनके कंपैरिजन में उनसे कम रेट में ज्यादा अच्छे फीचर वाले एंड्रॉइड फोन्स अवेलेबल हैं, बट बिकॉज दे हैव अ पोजीशन इनोवेशन, दे हैव अ पोजीशनिंग ऑफ द एप्पल प्रोडक्ट्स इन देयर आईज, तो दे विल ऑलवेज गो फॉर दैट, ठीक है। सो दैट इज लाइक क्रिएटिंग अ ब्रांड। अब वापस आते हैं, सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं। अब आपको सबसे पहले आप वो था ना पॉइंट के मार्केट रिसर्च करने का, तो मार्केट रिसर्च करने के लिए व्हाट डू यू नीड टू डू? So you have to do some research on your own. It can be through various research papers, popular articles, magazine articles, research, or popular publications, I would say. Then you can actually directly observe in the market. आपको मान लीजिए आप इधर जा रहे हैं और आपको लगता है कि यार ये अगर मैं ऐसे करता, या फिर ये चीजें यहाँ पे अगर ऐसे बनी होती, या फिर ये इंफ्रास्ट्रक्चर में ये चीज हो सकती थी, तो चीजें आसान हो जाती, ठीक है। सो somebody would have thought of the things that आप लोग, you're surrounded by a lot of innovations around you. आपका लैपटॉप है, आपका फोन है, आप जिस चेयर पे बैठे हैं, आपके यहाँ जो फैन चल रहा है, एसी चल रहा है, तो कभी ना कभी किसी ने कुछ सोचा होगा तभी ये चीजें बन पाई, ठीक है। किसी ने कुछ प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया और उसके हिसाब से उस चीज का सोल्यूशन प्रोवाइड किया। वो शुरू में ऑब्वियसली एक प्रोटोटाइप बना होगा, रिफाइन होते होते वो फाइनल प्रोडक्ट बन पाया, ठीक है। और अभी भी उसमें रिफाइनमेंट चल रही है, अभी भी उसमें बहुत चीजें, इसके प्रोडक्ट्स में भी कुछ ना कुछ नया इनोवेशन लाते रहते हैं लोग। तो क्या है कि डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑल्सो प्लेज अ वेरी मेजर पार्ट इन द सोर्सेज ऑफ रिसर्च। And then you can also attend, various workshops like this, or maybe various seminars or presentations or something like that. तो ये सारे का सारा आपका entrepreneurial mindset बनता है इससे, ठीक है। अभी और क्या सोर्सेज हो सकते हैं? लेट्स नॉट गो इनटू दीज डिटेल्स, बट आई विल जस्ट शो यू कि पब्लिकेशंस में क्या क्या हो सकता है। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशंस में आप इंटरव्यू भी कर सकते हैं, सर्वे भी कर सकते हैं, केस स्टडीज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स।
अभी एक कॉन्टिन्यूम की बात करें कि कितने तरह का इनोवेशन होता है, तो रेडिकल और इंक्रीमेंटल, ये दोनों तो एक्सट्रीम्स हैं। ठीक है, रेडिकल इज लाइक बहुत बड़ा चेंज, इंक्रीमेंटल छोटे छोटे इंक्रीमेंट्स में। तो इंक्रीमेंटल इनोवेशन की अगर हम बात करते हैं तो छोटे छोटे चेंज, जैसे कि दरवाजे में वो जो की होल कैमरा, या की होल कैमरा भी नहीं कहूंगी, कि की होल लगा होता है ना कि उसके सी थ्रू आप कर सके। जैसे होटल्स में अगर आप जाओगे या किसी किसी बड़े जगह पे गेस्ट हाउस में आप रुकने जाओगे, तो दरवाजे के ऊपर एक से छोटा सा गोला बना होता है। दैट्स लाइक एन इंक्रीमेंटल इनोवेशन, उसमें कुछ ज्यादा कुछ नया कुछ नहीं किया, बस ऐसा है कि बाहर वाला अंदर नहीं देख सकता, पर अंदर वाला पूरा बाहर देख सकता है। ठीक है, तो दैट इज लाइक एन इंक्रीमेंटल इनोवेशन। जब भी छोटे छोटा इसमें इन्होंने बताया हुआ है, जैसे फ्रोजन योगर्ट बना दिया किसी ने, ठीक है, दैट इज एन इंक्रीमेंटल इनोवेशन। बबल रैप, जो हम उसको पटाखे बजा के जिनको बड़े मजे आते हैं ना उस चीज में, सो लाइक टू बबल रैप इज बट कि कोई भी ऐसा पेरिशेबल आइटम, पेरिशेबल आई वोंट कॉल इट पेरिशेबल, ब्रेकेबल आइटम है, उसको कवर करने के लिए जो बबल रैप बनाया गया, ठीक है, दैट इज ऑल्सो इंक्रीमेंटल इनोवेशन। ऐसे करते 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 अगर हम लास्ट में देख रहे हैं तो की होल सर्जरी, जो लेप्रोस्कोपिक की सर्जरी की जाती है, यू नो, कि विदाउट पूरा चीर फाड़ करे बिना, ठीक है, दूरबीन वाली जिसको हिंदी में बोलते हैं, तो दिख जाता है रेडिकल इनोवेशन। तो ये कॉन्टिन्यूम है कि कैसा 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 इनोवेशन छोटे लेवल का और बड़े लेवल का भी हो सकता है। ठीक है, 4 P's होते हैं किसी भी इनोवेशन स्पेस में। फर्स्ट इज योर प्रोडक्ट, सेकंड इज उसका पोजीशनिंग, थर्ड इज उसका प्रोसेस, एंड फोर्थ इज द पैराडाइम। ये मैं आपको पीछे बता भी चुकी हूँ, और इसमें इन्होंने ये चारों चीजें इसमें इंट्रोड्यूस भी की हैं कि इंक्रीमेंटल हो सकता है, छोटा मोटा चेंज, सस्टेनिंग हो सकता है, डिसरप्टिव हो सकता है विच इज अ गेम चेंजर, और एक रेडिकल हो सकता है लाइक एंटायरली न्यू टू द वर्ल्ड, ऐसा कुछ था ही नहीं मार्केट में। ठीक है, तो इंक्रीमेंटल क्या बोलता है कि व्हाट वी ऑलरेडी डू बट बेटर। सस्टेनिंग क्या बोलता है कि रूल्स ऑफ द गेम रिमेन द सेम, बस ये सस्टेन करेगा, ये रुकेगा, ये चलेगा। डिसरप्टिव क्या बोलता है कि गेम चेंजर फॉर अ मार्केट और इंडस्ट्री। और रेडिकल क्या है, एकदम एंटायरली न्यू टू द वर्ल्ड। ठीक है, अगर हम बात करते हैं एग्री में, अब इनपुट मार्केट प्लेस में कुछ चेंजेस हैं, आउटपुट मार्केट प्लेस में भी कुछ चेंजेस हैं। इनपुट की जब हम बात करते हैं तो टेक इंटरवेंशन आ गई है एग्रीकल्चर में, थ्रू मोबाइल एप्स, थ्रू एनालिटिक्स, थ्रू ई कॉमर्स, थ्रू हाइपर लोकल अप्रोच। इसमें वैल्यू प्रोपोजिशन क्या है कि एक क्वालिटी प्रोडक्ट सप्लाई किया जाएगा आपके डोर स्टेप पे, या फिर दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, एग्रो एडवाइजरी किसी को अगर लेनी है। ठीक है, इसमें ये सेक्टर में ये पर्टिकुलरली ये स्टार्टअप्स आर द right now as of 2023, this may change, but they are like best performers. ठीक है, तो ये क्या करते हैं, प्रोवाइडिंग फार्मर बेटर access to agriculture inputs at their doorsteps, and then helping the farmers to understand the best input product to increase the yield and productivity. देहात है, एग्रोस्टार है, बिग हार्ट है, तो ये सारे के सारे इसमें। ठीक है, दूसरा जब मैं बात करती हूँ फार्म मैनेजमेंट एंड डेटा एनालिटिक्स का, सास जिसको बोलते हैं ना, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ठीक है, तो वहां पे टेक इंटरवेंशन क्या हुआ है नया एग्रीकल्चर में, ड्रोन्स आ गए हैं, डेटा एनालिटिक्स आ गया। ठीक है, आईओटी के सेंसर्स आ गए हैं। देयर इज वन ऑफ आवर स्टार्टअप, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, उसने ऐसा सेंसर बनाया कि टू आइडेंटिफाई डिजीज। ऐसा एक नहीं, ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं। आई थिंक अनियन में गोदाम है, तो यस देयर आर लॉट ऑफ स्टार्टअप्स, तो मशीन लर्निंग का काम करते हैं। एंड देन नाउ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज आल्सो इंट्रोड्यूस्ड इन एग्रीकल्चर। इमेज प्रोसेसिंग आ गया, इमेज फोटो करके ऐसा वो डिजीज बताता है ना। ठीक है, तो वैल्यू प्रोपोजिशन क्या, ट्रेसेबिलिटी रहेगा इसमें, क्रॉप मॉनिटरिंग रहेगा। ठीक है, तो डिजिटल एंड प्रिसीजन एग्रीकल्चर जो है, ये ऐसे बिजनेसेस हैं जो आपको इनोवेटिव टेक्नोलॉजी देते हैं, सॉल्यूशंस फॉर इंक्रीजिंग क्रॉप प्रोडक्टिविटी। अगर मैं बात करूं आज से 10 साल पहले ये चीजें नहीं होती थी, तो इसके मेजर स्टार्टअप सेक्टर्स जो हैं, ये क्रॉपिन है, एग्नेस्ट है, कृषि हब है। अभी ये धीरे धीरे ये, अगर मैं बात करूं देहात की, आई थिंक वो ऑलरेडी यूनिकॉर्न स्टेज में है। तो ऐसे ऐसे और बहुत स्टार्टअप्स हैं जो आने वाले टाइम में दे विल बी नाउ दे आर लाइक यूनिकॉर्न्स, बट दे विल बी यूनिकॉर्न इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। ठीक है, फिर फार्मिंग एज अ सर्विस की अगर हम बात करते हैं, अभी फास्ट FAAS इज ऑल्सो इवॉल्विंग एज अ मेजर सेक्टर इन एग्री बिजनेस। तो इसमें टेक इंटरवेंशन क्या है, हार्डवेयर का है, फार्मिंग एज अ सर्विस है, और वर्टिकल फार्मिंग या हाइड्रोपोनिक्स को अगर आप इसमें देखें तो मेजर सेक्टर्स ये हैं। वैल्यू प्रोपोजिशन क्या करते हैं, पेपर यूज पे हो सकता है, आप जितना आपको यूज करना है। फार्म मैनेजमेंट का सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड कर सकते हैं टेक्नोलॉजी दैट इज आउट ऑफ रीच एट लोअर स्ट्रेटा, ऐसा भी हो सकता है। इसमें छोटे छोटे स्टार्टअप भी है, बड़े बड़े स्टार्टअप भी है। बेटर एसएससी किस चीज का देगा आपको, फार्म मशीनरी का, इक्विपमेंट का। ठीक है, प्रोवाइड करेगा प्रोफेशनल सर्विसेज बाय एक्सपर्ट्स ऑन फार्म रिजल्टिंग इन हायर प्रोडक्शन। इसमें एग्जांपल्स ये लोग हैं। ठीक है, अभी लाइफ स्टॉक का भी ऐसे, लेट्स नॉट गो इनटू दीस डिटेल्स, बट आई एम ट्राइंग सो दैट यू, आई मीन आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड कि कहाँ कहाँ पे किस किस सेक्टर में कैसा कैसा चेंजेस या कैसा कैसा आई वुड से ब्रेक थ्रू इनोवेशन हो रहे हैं। ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स। अभी फ्यूचर ट्रेंड्स की अगर मैं बात करूं तो फ्यूचर एग्री बिजनेस विल बी डिमांड ड्रिवन रेदर देन सप्लाई लेड। ठीक है, अभी आने वाले टाइम में ऑब्वियसली अभी भी ऐसा चीजें आ लाइक ऑलरेडी इन दिस ट्रैक, ऐसा ऑलरेडी चल रहा है।
टेक्नोलॉजी विल बी द की इन बोथ एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग. अभी अगर हम इन्वेस्टर स्पेस में बात करते हैं, बिकॉज वी कीप ऑन टॉकिंग टू इन्वेस्टर्स अ लॉट ऑफ टाइम्स फॉर आवर स्टार्टअप्स, तो दे कीप टेलिंग अस कि सास में वो पैसा लगा रहे हैं, एआई में पैसा लगा रहे हैं, मशीन लर्निंग जो स्टार्टअप है उसमें पैसा लगा रहे हैं. नाउ दे आर ऑल्सो गेटिंग टू बायोटेक, दे आर ऑल्सो गेटिंग टू डीप साइंस. ठीक है, तो यानी कि वो इस चीजों में भी आ रहे हैं धीरे धीरे. तो वर्टिकल इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें सब ये चीजें हैं. ठीक है, फिर इससे क्या होगा, इससे ग्रो होगा ऑब्वियसली, और भी एनवायरनमेंट हमारा अवेयर होगा और कंज्यूमर फोकस बढ़ेगा. नाउ एग्रीकल्चर और एग्री बिजनेस में भी ब्रांड बिल्डिंग जो ऑलरेडी हो भी गई है, ये और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी. ठीक है, सो लेट्स नॉट गो इनटू दीज डिटेल्स कि इसमें बस वही इवॉल्विंग कैसा हो रहा है, मार्केट लिंकेज इंप्रूव हो रहा है, डिजिटल एग्रीकल्चर आ रहा है, बेटर असेस टू इनपुट फार्मिंग एज अ सर्विस. अब आप देखेंगे ना, इन सभी सेक्टर्स में बहुत सारी रिसर्च पब्लिकेशंस और बहुत सारी पॉपुलर पब्लिकेशंस भी आ रही हैं, बिकॉज थिंग्स आर चेंजिंग. नाउ एग्री फिनटेक इज, इट इज बिकम अ डिफरेंट सेक्टर. इट वाजंट एग्जिस्टेंट. आई थिंक हमारे इंडिया में तो 2019 के पहले एग्री फिनटेक में ज्यादा कुछ काम नहीं था, बट नाउ दे हैव दिस. ठीक है, और अभी तो आई थिंक आई वाज रिसेंटली इन द आरसी मीटिंग विद पीएयू, क्योंकि हम लोग भी इवेलुएट अदर राबी सेंटर्स एज वेल. तो वहां पे मैंने देखा कि देयर वाज अ स्टार्टअप जो कि एक ऐसा जैसा अपना ये होता है ना बैंकिंग का, क्रेडिबिलिटी का, लोन का, ऐसा वो फार्मिंग के लिए कुछ ऐसा नया एक आई एम फॉरगेटिंग द थिंग्स, बट आई विल शेयर विद उत्कर्षा मे बी, और मे बी विद प्रीति, तो वो आपके साथ शेयर कर देंगे कि वो उसमें क्रेडिबिलिटी के लिए एक नया बेस, एक स्टैंडर्डाइजेशन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. So which is also the future of agribusiness, I would say. ठीक है. So now when we talk about transforming agriculture through entrepreneurship and innovation, so we have our incubator based in IRI, ACR IRI. तो पूसा कृषि is our incubator. So we have a lot of schemes. आप लोग कभी भी, मतलब it's because it's a सरकारी organization, आप लोग, I mean, कभी भी for any farmer who's educated or not educated, for any masters or graduation student or PhD student, जिसको भी startup करने हैं, so they are interested, they can always come to our office, or also you can also check our website, is pusakrishi.in. अभी 1 तारीख को हम एक और प्रोग्राम लॉन्च करने वाले हैं, which is called as क्षितिज. ठीक है, that is also one of the focus areas for our agri enterprises. So I'll take you through 4 or 5 case studies जो हम लोग के पूरे पैन इंडिया से निकल के आया है. तो इसमें सिर्फ चिकन बार शो हुआ है, पर दिस गाय इज आल्सो डेवलप्ड नाउ वीगन बार्स. तो अंकित अलावत, ही इज फ्रॉम हिसार, हरियाणा. तो इन्होंने क्या किया है कि फूड प्रोसेसिंग में इन्होंने इट्स लाइक, आई वुड से इट्स वर्ल्ड्स फर्स्ट नॉन रेफ्रिजरेशन रिक्वायर्ड 6 months शेल्फ लाइफ रेडी टू ईट चिकन प्रोटीन एंड ऑल्सो वीगन प्रोटीन बार्स. ठीक है, प्लांट बेस्ड है जो इनका वीगन बार्स है. तो इनका अब ये, आई मीन ही इज सेलिंग ऑनलाइन, Amazon, Flipkart, ऑफलाइन इन द स्टोर्स एज वेल. सेकंड केस स्टडी आई वुड से दिस इज फ्रॉम मोहाली, चंडीगढ़. सो मृदुला भारद्वाज इज हर नेम. तो इन्होंने प्लूटस प्लस नाम से, अच्छा इसका प्रोडक्ट का नाम है हर्ब चिक नाम से, हर्ब चिक. ठीक है, सो प्लूटस प्लस इज ऑल्सो वन ऑफ आवर स्टार्टअप्स. इन्होंने क्या बनाया, तो एक एग्जांपल मैंने कोट किया था ना कॉस्मेटिक्स वाला, तो ये एग्रो वैल्यू एडिशन पे काम कर रहे हैं. तो ये क्या करते हैं, गोट मिल्क के साथ ऑर्गेनिक स्किन केयर प्रोडक्ट्स बना रहे हैं. तो ये क्या करते हैं, जैसे मंदिरों में हम लोग फूल अर्पण करके आते हैं, या फिर जो फार्मर के पास जो 3rd ग्रेड फ्लावर रह जाता है ना, फ्लोरिकल्चर फार्मर्स के पास, कि पहला वाला तो एक्सपोर्ट पे निकल गया, सेकंड लेवल वाला अपने इंडिया में अच्छी मार्केट में आ गया, उसके बाद टूटे वूटे पंखड़ी वंखड़ी रह जाती है ना, तो ये वहां से प्रोक्योर करती है और मंदिरों से प्रोक्योर करती है, उनसे एसेंशियल ऑयल्स निकालती है, और थ्रू वेरियस विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वो उनसे वो हैंडमेड सोप्स और वेरियस प्रोडक्ट्स, शी हैज आई थिंक 46 प्लस प्रोडक्ट्स वो बनवाती हैं, और उन्हीं से बाय बैक भी कर लेती है. एंड ऑल्सो शी गॉट दिस बेस्ट विमेन स्टार्टअप अवार्ड फ्रॉम द बिहार स्टेट एग्रीकल्चर मिनिस्टर अमरिंदर प्रताप जी. तो I mean, she is working now in I think in Bihar, in Haryana, and also in Jammu Kashmir. So right now, like she's also growing. So this is also one of the good examples कि cosmetics में कैसे agriculture आ सकता है. ठीक है. This is also one of other startups. ये नितिन ललित है, करनाल बेस्ड है. इसने ये openable planters बनाए हैं. So precision farming इसको आप बोल सकते हो. So I would say कि it creates nearly a hydrotropism effect. तो रूटिंग शूटिंग नॉर्मल गमले से, एक खुलने वाला गमला सीधी भाषा में, तो नॉर्मल गमले से इसमें 60% रूटिंग शूटिंग ज्यादा होती है. यू कैन इवन चेक योर लाइव रूट्स एज शोन हियर. ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ आवर स्टार्टअप्स. देन फार्म मैकेनाइजेशन के लिए मैंने ये डाला, राजेंद्र सिंह है, ये किसी प्रॉपर एक गांव से है, 7 रोड से. तो इनका क्या है कि इनकी एक विनोइंग मशीन बन गई है. सो ये है 7 रोड से, ये जो है ये हमारे फार्मर है. मतलब सी ही इज नॉट लिटरेट. ठीक है, उनको क्या था, उनको थोड़ा बहुत ऐसा वेल्डिंग का काम आता था, एक छोटे मोटे लेवल पे उन्होंने ऐसा फराटा को जोड़ के अपना एक मशीन बना लिया था. सो ही वाज कनेक्टेड टू द एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग साइंटिस्ट, उन लोग के साथ में काम करके नाउ दिस इज अ फुली विनोइंग मशीन जो उन्होंने डेवलप कर दिया, व्हिच इज अ वेरी गुड इनोवेशन.
ठीक है, इज ऑल्सो रेज्ड आई थिंक 22 lakhs फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर रफ्तार स्कीम. ठीक है, सो दीज वर अ फ्यू एग्जांपल्स फ्रॉम द प्रीवियस बैचेस. ठीक है, मैनेजिंग इनोवेशन. अब इनोवेशन को मैनेज करना है, आपको देख सकते हैं इंक्रीमेंटल जो इनोवेशन जो रहती है वो 6 महीने से 2 साल तक हो सकती है, और जो रेडिकल इनोवेशन रहती है वो आपकी बढ़ेगा, आई मीन इट टेक्स टाइम, टिपिकली 10 years और मोर. जस्ट लाइक आप अपना जो क्रॉप वेराइटीज बनता है, ठीक है, उसमें भी टाइम लगता है. मोटिवेटिंग फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? इंटरनल फैक्टर्स हो सकते हैं और एक्सटर्नल फैक्टर्स हो सकते हैं. इंटरनल फैक्टर में एजुकेशनल बैकग्राउंड आपको बता सकता है कि व्हाई डू यू नीड टू स्टार्ट एन एंटरप्राइज, और व्हाई डू यू नीड टू स्टार्ट अ स्टार्टअप. ऑक्यूपेशनल एक्सपीरियंस आपको हो सकता है, यू हैव अ डिजायर टू वर्क इंडिपेंडेंटली. ठीक है, एक्सटर्नल फैक्टर्स में आप देखते हो आपकी सरकार, आपका देश अगर बहुत सपोर्टिव है स्टार्टअप के लिए, तो ऑब्वियसली आप यू विल वांट टू गो टू स्टार्टअप इकोसिस्टम. अदरवाइज अगर वहां पे सपोर्ट ही नहीं मिल रहा तो व्हाट विल यू डू? ठीक है, अपने खुद के पैसे से कितना कर पाएंगे? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, अवेलेबल टेक्नोलॉजी है. आई एम नॉट सेइंग कि हर किसी को पैसा सोर्स करना पड़ता है, बट वी रेकमेंड, एज बिकॉज वी आर वर्किंग विद इनक्यूबेटर्स, वी रेकमेंड कि सारा पैसा एकदम से स्टार्टअप पे नहीं लगाना चाहिए. यू शुड ऑलवेज ट्राई एंड टेस्ट द मार्केट, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट्स ना, तो व्हाई नॉट मेक अ गुड यूज ऑफ इट. ठीक है, फिर चैलेंजेस मेजरली क्या रहता है कि बिकॉज आपको अभी सब कुछ ऑनलाइन हो गया, और आफ्टर कोविड तो एवरीथिंग हैज बिकम ऑनलाइन. यू हैव टू हैव एन ऑनलाइन प्रेजेंस, तो ई कॉमर्स पे आपको आना ही पड़ेगा, और ग्लोबलाइजेशन पे भी आपको आना पड़ेगा. यू कैन नॉट लिमिट योरसेल्फ टू अ पर्टिकुलर एरिया और अ सिटी और अ स्टेट. लेट्स स्टार्ट विद अ छोटा सा तालुका, एंड देन लेट्स गो टू अ ब्लॉक, लेट्स गो टू अ सिटी, फिर उसके बाद कुछ आसपास का सिटीज, फिर मे बी पूरा स्टेट, और फिर मे बी गेट गो टू द नेक्स्ट स्टेट. ऐसा करते करते पूरा इंडिया कवर कर लीजिए. अगर आपको नहीं लग रहा कि आपको लग रहा है 1-2 स्टेट में कवर करके ही मेरे को ग्लोबल में जाना है, मेरा मार्केट में मेरे को, बिकॉज वी हैव अ लॉट ऑफ स्टार्टअप्स जिनका मार्केट एरिया नॉर्थ इंडिया था, फिर देन दे वेंट टू दुबई, सम प्रोडक्ट्स आर आल्सो सेंट टू यूके. तो दैट्स हाउ ग्लोबलाइजेशन में भी आप लोग जा सकते हैं. रिवार्ड्स क्या होते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के? अपना बिजनेस खुद से शुरू करने के. यू मेक योर ओन मनी, फर्स्ट थिंग. यू बी योर ओन बॉस, सेकंड थिंग. थर्ड, यू एंजॉय सेटिस्फाइंग लाइफ. ठीक है, तो प्रॉफिट है, इंडिपेंडेंस है, और पर्सनल फुलफिलमेंट तो है ही. ठीक है, कितने तरह का एंटरप्रेन्योर हो सकता है? एक तो बिल्कुल प्योर फाउंडर हो सकता है, वो प्योर एंटरप्रेन्योर, वी कॉल इट प्योर बिकॉज कि उसने बिल्कुल ही नया कुछ बना दिया, मार्केट में लाके लेके आया, नया फर्म बना दिया. ठीक है, नया एग्जिस्टेंस आ गया. एडमिनिस्ट्रेटिव एंटरप्रेन्योर क्या हो सकता है? यू कैन वर्क विद समवन जिसको एक्सपैंड करना है अपने यहाँ पे बिजनेस, या आपको बाहर अपना बिजनेस शुरू करना है. फॉर एग्जाम्पल, आपको दुबई में बिजनेस सेटअप करना है, तो देयर यू कैन फाइंड अ पार्टनर देयर, और मे बी थ्रू लिंक्डइन, मे बी थ्रू ऑफलाइन मीटिंग्स, और वहां पे उसको वो क्या कहलाएगा? आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एंटरप्रेन्योर. यू कैन ऑल्सो गो फॉर एन फ्रेंचाइजी. आप एक कोई लाइसेंस लेके अपना कोई ऑलरेडी एक चेन चल रहा है उसका फ्रेंचाइज खोल सकते हैं. ठीक है, देन यू कैन ऑल्सो हैव अ एंटरप्रेन्योरल टीम. 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलके इकट्ठा एक अपना, मतलब फाउंडर, को फाउंडर या डायरेक्टर बन के एक अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हैं. ठीक है, तो हमें करना क्या होगा? यू हैव टू, फर्स्ट थिंग यू हैव टू चूज अ निश. निश माने एक टारगेट मार्केट आपको चूज करना पड़ेगा. व्हाट आर यू गुड एट? सी, सम पीपल आर गुड एट टेक्निकल थिंग्स, सम पीपल आर गुड एट फाइनेंस का थिंग्स, सम पीपल आर गुड एट कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशंस, सम पीपल आर गुड एट अदर थिंग्स. तो आपको वो देखना है कि आप किस चीज में गुड है. ठीक है, तो उसी हिसाब से, या फिर किस सेक्टर में आप गुड है. ठीक है, उस हिसाब से यू हैव टू डिसाइड निश मार्केट. फिर उस निश मार्केट में आप क्या वैल्यू ऐड करने वाले हैं? व्हाट इज द वैल्यू दैट यू आर गोइंग टू ऐड टू दैट पर्टिकुलर मार्केट और अ प्रोडक्ट. ठीक है, फिर उस प्रॉब्लम, कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जिसको आप सोल्व करने का सोच रहे हैं. तो दिस इज हाउ यू कैन चूज योर निश मार्केट. दूसरा, अभी जो भी आपने निश मार्केट चूज कर लिया, उसमें आपको बेस्ट होने के लिए क्या क्या लगेगा, क्या क्या चीजें आपको करना है, वो आपको समझना पड़ेगा. तो दैट मीन्स आपको कंटिन्यूअली आपको एक लर्निंग फेज में रहना पड़ेगा. यू हैव टू लर्न अ लॉट. ठीक है, उस इंडस्ट्री, पर्टिकुलर इंडस्ट्री का. फॉर एग्जाम्पल, किसी ने बोला कि मेरे को लेट्स से फूड प्रोसेसिंग. ठीक है, इजी, वेरी इजी, कि हमें फूड प्रोसेसिंग में कुछ करना है. सब साउंड्स वेरी इजी ओनली, लाइक उसके बाद आपको समझना है कि क्या करना रहेगा. उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री का आप हिस्ट्री स्टडी कीजिए. आप देखिए कि क्या नया हो रहा है, क्या ऐसा बाहर में ऐसा कुछ बन रहा है जो इंडिया में भी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ, या फिर इंडिया में ऑलरेडी ऐसा कुछ हो रहा है जहाँ पे ये कमियां हैं, क्या मैं इस कमी को दूर कर सकता हूँ. सो यू हैव टू स्टे ऑन द कटिंग एज. ठीक है, आपके लोगों से, आप ही की इंडस्ट्री के लोगों से नेटवर्क कीजिए, उनसे मिलिए. मे बी अटेंड अ कॉन्फ्रेंस, अटेंड अ वर्कशॉप, अटेंड अ सेमिनार, मीट द पीपल. नेटवर्क कीजिए. नेटवर्किंग के थ्रू मे बी पार्टिसिपेट इन द किसान मेलाज और समथिंग. उधर जाके देख लीजिए स्टार्टअप्स क्या क्या काम कर रहे हैं. सो मे बी एसोसिएट योरसेल्फ विद एन इंक्यूबेटर और विद एन इन्वेस्टर इन एग्री स्पेस. फिर इंडस्ट्री इवेंट्स को अटेंड करके देन यू कैन अंडरस्टैंड के कहाँ पे क्या क्या चीजें मैं दे सकता हूँ, मेरे लिए बेटर क्या हो सकता है, हाउ कैन आई बी द बेस्ट इन दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री. ठीक है, फिर उस चीज को अगर आप समझ पा रहे हैं, उस चीज को इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं, तो उसको डेमोन्स्ट्रेट भी कीजिए. ठीक है,
तो अपने निश मार्केट में आप एक रेलेवेंट सोर्स के रूप में काम कीजिए, बिकॉज यू आई ऑलरेडी मेंशन यू हैव टू हैव अ सोशल मीडिया प्रेजेंस, ठीक है। फिर आपको स्पीकिंग इवेंट्स में भी जाना है, आप इंटरव्यूज भी कीजिए, आप उसमें और नया कंसिस्टेंटली कुछ क्या कर सकते हैं, नहीं दैट मीन्स लाइक हाउ डू यू एड मोर वैल्यू टू द पर्टिकुलर इंडस्ट्री। अभी एक ये छोटा सा कोट है, द वे टू गेट स्टार्टअप आइडिया इज नॉट टू ट्राई टू थिंक ऑफ स्टार्टअप आइडियाज। कभी भी ऐसा मत सोचिए कि ये फलाना आदमी ऐसा कर रहा है तो मैं भी ऐसा वाला स्टार्टअप लगाता हूँ, नहीं, आप क्या पता उससे ज्यादा बेटर किसी और फील्ड में कर पाए। आपको वो देखना है कि आपका खुद का इंटरेस्ट क्या है। सेकेंड थिंग, आप उस इंटरेस्ट को कल्टीवेट करने के लिए कितना कुछ कर पा रहे हैं। थर्ड थिंग, उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में ग्रोथ का स्कोप कितना है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली आपको क्या क्या हेल्प चाहिए या क्या क्या ग्रोथ फैक्टर्स चाहिए, उसको स्टडी कीजिए, उसकी हिस्ट्री को स्टडी कीजिए, उस इंडस्ट्री को, ठीक है। सो व्हाट अबाउट व्हेन यू नीड टू कम विद एन आइडिया। आइडिया कैसे आएगा, जब तक आप आसपास का प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, प्रॉब्लम में से आइडिया निकल के आएगा ना। प्रॉब्लम का आप सोल्यूशन सोचेंगे, सोल्यूशन इज द आइडिया, सिंपल बात है, ठीक है। सो व्हाट इज गुड स्टार्टअप आइडिया। फर्स्ट थिंग, एक रियल ह्यूमन नीड में रूटेड है। हम जैसे मैंने बोला कि आसपास देखिए प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, वो एक ह्यूमन जरूरत है। देन यू कैन सी इट हाउ इट कैन बिकम एन इम्प्रेसिव बिजनेस। किसी और को नहीं भी दिखता है तो वो अगर आपको दिख रहा है, अदरवाइज तो ये जो सारी चीजें हमारे आसपास हैं ये कभी इन्वेंट हो ही ना पाती, क्योंकि पीपल वुड ऑलवेज मेक फन ऑफ इनोवेटिव आइडियाज। आई मीन दे आर, आई मीन ह्यूमन टेंडेंसीज देयर। ये किसी ने बोल दिया कि क्योंकि जब हमारे पास नितिन आया था ना ये खुलने वाला गमला लेके, सो हम लोग उसको ऐसे एक बैंकर से मिलाए थे। आई मीन आई विल नॉट नेम द बैंक बट इट्स अ वेरी प्रोमिनेंट गवर्नमेंट बैंक। जब उसके बैंक के एमडी से मिलाए थे, तो बैंक के एमडी ने साफ बोल दिया था कि क्या खुलने वाला गमला है ना, वो हंसने लगा, तो क्या पागलपन है ये, कैसा, ये कैसी बातें कर रहे हो, समझ रहे हैं। पर आज वही बैंकर उसको बोलता है यार भाई साहब मुझसे लोन ले लो, पर अभी उसको नहीं चाहिए क्योंकि उसको ऑलरेडी इतने सारे इन्वेस्टर पैसा दे चुके हैं, उसको हम ग्रांट 25 लाख का दे चुके हैं, ठीक है। सो दैट्स हाउ थिंग्स वर्क। आई मीन नोबडी कैन सी, अगर आप देख पा रहे हैं, इफ यू हैव फेथ इन यू, गो विद दैट, ठीक है। आपके पास गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं आपकी हेल्प करने के लिए, ठीक है। देन नेक्स्ट थिंग, यू आर पैशनेट अबाउट इट, यू हैव दिस पैशन, देन यू हैव सम सॉर्ट ऑफ एडवांटेज इन सोल्विंग इट। आपके पास कोई टेक्निकल हो सकता है ना, आपके पास कोई ऐसा डिग्री, आपने पढ़ाई ऐसा कर लिया है, आपने ऐसा जान लिया है, आपका एक्सपीरियंस ऐसा हो गया उसमें काम करके, सो यू हैव अ सम सॉर्ट ऑफ एडवांटेज व्हिच मेक्स यू बेटर देन द अदर पीपल इन द सेम इंडस्ट्री, ठीक है। अब आपको समझना है कि मिशन है, एक नॉर्थ स्टार है, नॉट अ सेट ऑफ फीचर्स है। दैट मींस बढ़ने वाला सस्टेनेबल है कि नहीं, ऐसा ही है, ठीक है। तो नो दैट सेल्फ, खुद को जानिए, पर्सनल प्रॉब्लम क्या है, पर्टिकुलर कस्टमर क्या होगा, पर्टिकुलर इंडस्ट्री क्या होगी, पर्टिकुलर बिजनेस मॉडल क्या होगा, पर्टिकुलर फंडिंग क्या होगी, और अगर मैंने फंडिंग उठाई है तो मेरे को अगर मान लो कल को एग्जिट भी करना पड़े फंडिंग से, वो एग्जिट प्रोफाइल क्या होगा। ये मेरे लिए एक लाइफस्टाइल है या गो बिग गो होम बिजनेस है, बड़ा पैसा उठाना है मेरे को, ठीक है। तो दैट्स हाउ बिजनेस इंक्यूबेटर्स आर देयर इन द मार्केट। दे आर डिजाइन्ड टू हैच द न्यू बिजनेस आइडियाज, ठीक है। इंक्यूबेटर्स प्रोवाइड्स नंबर ऑफ रिसोर्सेज टू अ न्यू वेंचर। ये हमारे कुछ इनिशिएटिव्स हैं जिसमें हमने आपको दिखा रखा है, जैसे इसमें बीज है, क्षितिज 1 सितंबर को हम लॉन्च कर रहे हैं। अराइज उपजा हमारा लास्ट मंथ लॉन्च होके, मतलब इसका लास्ट मंथ क्लोजिंग था और अभी इसका चल रहा है। तो अराइज इज आर 5 लाख का फंडिंग स्कीम, उपजा इज आर 25 लाख का फंडिंग स्कीम। सो वी कॉल इट प्री सीड एंड वी कॉल इट सीड। तो दैट्स हाउ ये शुरू में अगर जो बिल्कुल इनिशियल फेज में हमारे पास कोई स्टार्टअप आएगा, हम उसको बीज और क्षितिज में रखते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद उसको अगर प्रोटोटाइप डेवलप हो गया है, एक बोलते हैं ना एमवीपी, ठीक है, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बन गया है, तो उसको हम अराइज में ले जाते हैं। अगर वो कमर्शियल पे जा रहा है तो उसको उपजा में ले जाते हैं। देन वी हैव अदर प्रोग्राम्स, विमेन क्वेक है, मैत्री है, ठीक है। वी ऑल्सो वर्क विद वेरियस आई वुड से, जैसे हमने लास्ट में इंडो ब्राजील प्रोग्राम एक किया था, ठीक है। तो हम आपको मार्केट से बाहर भी, इंडिया से बाहर भी ले जाने में बहुत हेल्प करते हैं। ये रिसेंट बैच का मैंने 1-2 एग्जाम्पल यहाँ कोट किया है, so that you can understand how AI and ML is also working in the agriculture scenario. So this FICES is based in Mumbai. Yes, it's based in Mumbai. इन लोग ने क्या बनाया, इन लोग ने बनाया है मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ रेट ऑफ वाटर सॉइल फर्टिलिटी। ये छोटा छोटा सेंसर्स बनाया है, अगर आप देख पा रहे हैं ये सेंसर्स इधर ही है, ठीक है। ये किसके लिए, सॉइल फर्टिलिटी के लिए काम करता है, वाटर का रेट क्या है वो देखने के लिए, क्रॉप ग्रोथ के लिए, पेस्ट एंड डिजीज के लिए, माइक्रो हर चीज के लिए कंपोजिट इसने सिंपल एक सेंसर बना दिया विच यूजेस IoT, AI एंड ML एन एप्लीकेशन ऑफ सेंसर्स, ठीक है। और ऑलरेडी 50 लाख का रेवेन्यू कर चुका है मार्केट में विद इन आई थिंक जस्ट 1 year. This is also one of the good examples. Intello Labs. It's also like ये भी AI सेंसर बेस्ड ही है, ऐसा ही चलेगा, ठीक है। फिर देन वी हैव ड्रोन का एक एग्जांपल, डेबेस्ट है हमारा स्टार्टअप। तो डेबेस्ट ने क्या किया, डेबेस्ट ने भी ऐसा एक फुली ऑटोनोमस हाई प्रिसीजन एनेबल्ड स्प्रेइंग ड्रोन बनाया, कृषि नाम से, कृषि with auto adjusting nozzle and sprinkling system for spraying of various type of liquid fertilizers, pesticides, herbicides and insecticides, ठीक है। इनका सेल अगर आप देखें तो 3.95 CR
ऑलमोस्ट 4 करोड़, और ये आई थिंक 2021 का डेटा है, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द गुड एग्जाम्पल, एंड दिस इज बेस्ड फ्रॉम रायपुर, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स की? टेनासिटी, दैट मींस स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट। मेरे को अगर मैंने बिजनेस शुरू किया है तो मेरे को आई हैव टू गिव माय बेस्ट टू माय बिजनेस, मेरे को उसके लिए अपना पूरा लॉयल्टी देना पड़ेगा, ठीक है। अनलाइक द जॉब्स, बिजनेस इज लाइक 24/7 का नौकरी, ये भी समझ के आपको उतरना पड़ेगा, आपको फुल कमिटमेंट देना पड़ेगा उसको। सेकेंड थिंग, सेल्फ रिलायंट, आपका एक लोकस ऑफ कंट्रोल है बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया, आप अपने ऊपर रिलाई कर रहे हैं, अपना टीम के ऊपर रिलाई कर रहे हैं, तो यू कैन नॉट कैसा बोलते हैं ना, आप डिस्ट्रैक्शंस चाह के भी नहीं ले पाएंगे आप, बिकॉज यू हैव टू बिकम मोर सेल्फ रिलायंट। आत्मनिर्भर भारत की हम बात कर रहे हैं ना आज के टाइम पे, तो दिस इज द आत्मनिर्भर होना, ठीक है। तीसरा, यू हैव टू बी अ मॉडरेट रिस्क टेकर, थोड़ा मोटा आपको रिस्क लेना भी पड़ेगा, फाइनेंशियल भी, करियर वाइज, बिकॉज सी अगेन करियर का और नौकरी का, लाइक आई ऑलरेडी सेड, करियर का और इसका एंटरप्रेन्योरशिप का एक छोटा सा एक जगल रहता है हर एक की लाइफ में। अगर आप नौकरी के साथ शुरू करें, इवेंचुअली पीपल ईदर स्टिक टू वन, पर आप दोनों को हमेशा साथ में नहीं चला सकते, एक बार शुरू कर सकते हैं। इवन फॉर आई थिंक SAUs में भी कुछ जगह, और आई थिंक आई हैव हर्ड अबाउट IIT दिल्ली का मैंने देखा है, और आई थिंक बिट्स पिलानी का मैंने देखा, दे गिव देयर एम्प्लॉइज एज वेल सैबेटिकल लीव दे देते हैं वो आपको 2 साल से 3 साल के लिए। आई थिंक IRI ऑल्सो डज दैट, कि वो आप बीच में आप स्टार्टअप करना चाहो तो उसके 3 साल बाद आप उसको लाइक जस्ट बिकम लाइक ए कंसल्टेंट और अ डायरेक्टर टू द टीम, और बाकी आपको फाउंडर 2-3 साल में आप हायर कर लीजिए, और उनको लेट देम फंक्शन द स्टार्ट, यू कैन बी लाइक अ स्वेट इक्विटी पार्टनर, ठीक है। तो फाइनेंशियल, कैरियर और साइकिक रिस्क तो आपको रहेंगे। सो दिस इज द टोटल असेसमेंट आई वुड से। आप इसमें असेसमेंट में देख लीजिए, आपको जो असेसमेंट करनी रहेंगी वो ये 4 हैं। क्वालिटेटिव असेसमेंट करनी पड़ेगी, क्वांटिटेटिव असेसमेंट करनी पड़ेगी, स्ट्रेटेजिक असेसमेंट करनी पड़ेगी, और एथिकल। एंड देन यू हैव टू डिसाइड द टाइप ऑफ वेंचर, व्हाट काइंड ऑफ वेंचर यू वांट टू स्टार्ट। देन यू हैव टू लुक आउट फॉर द टाइप ऑफ एनवायरनमेंट इन दैट पर्टिकुलर वेंचर या पर्टिकुलर इंडस्ट्री। फिर आप उसमें किस टाइप का एंटरप्रेन्योर बनेंगे वो आप समझ लीजिए, ठीक है। आप प्योर रहेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव रहेंगे, फ्रेंचाइजी रहेंगे, क्या रहेंगे, ठीक है। ये सारा असेसमेंट करने के बाद में देन यू हैव टू डू द रिजल्ट ऑफ द असेसमेंट टू मेक सेंस, ठीक है। अब इसमें स्टेज का हो सकती है, आप अर्ली करियर में अपना स्टार्टअप करना चाह रहे हैं, मिड करियर में करना चाह रहे हैं, लेट करियर में करना चाह रहे हैं, ठीक है। और एक और चीज जो इसमें मैटर करेगी, दैट विल बी अ प्रायर एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन। दिस इज द होल, आई वुड से, द रोड मैप, ठीक है। सो आई विल जस्ट एंड माय प्रेजेंटेशन विद द कोट, कीप मूविंग, द माउंटेन्स विल मूव टू।